Hello everyone, welcome to CACPIS Academy's newspaper analysis. Myself, Apurva Nandi, senior faculty of CACPIS Academy. I hope you people are very much connected with me in my other YouTube videos. So I have decided to analyze daily current affairs with you people. So I wish you good luck and all the best for your upcoming examinations. Prelims, APSC prelims is very much near. So I hope you all are practicing well and good continuously তোমালোকে current affairs চাই থাকিবা MCQs continuously practice কৰিবা so what we have decided to bring daily newspaper analysis from different sources Assam Tribune, The Hindu, Indian Express. Wherever I get the important news which I feel will be important for the examination, I will be bringing it daily in this CACPIS Academy YouTube channel. So stay connected with us. So first of all, let's see what are the topics that in this video I will be discussing with you people. So you can see here that topic we will be covering today is India Bangladesh ties, Waqf bill, Myanmar earthquake, heat wave, and foreign portfolio investment. So along with that, you can see that I have also mentioned here about the GS paper. Along with this, the topic also. So why is it so important to analyze each and every topic of your newspaper with the syllabus? You have to know, you have to build the skill that whenever you see a topic in the newspaper, whether it is English, India Bangladesh ties, Waqf bill, anything, so you must click, your mind must click that yes, that topic belongs to that particular paper, and not only that paper, in that paper under which topic we shall study it. So when you will be very much clear about the different topics under different paper heads, then you will ensure yourself that you are very much closer to the cracking the nut of the examination. All right, so let's move ahead. So our first news is India Bangladesh ties. So here in every news, in the every analysis, in the first part of every analysis, I will be discussing why, what, and relevance. So you can see here why we will be discussing this India Bangladesh ties, because the simple answer is, if we go through the syllabus, you will get to know that yes, India Bangladesh ties, it is the part of the international relation that you study in GS paper 2, and under which topic it is the bilateral agreements involving India or affecting India's interest. All right, so sometimes you must have come across some news also like the Russia Ukraine war or any kind of war, that also we study in our syllabus. Why? Because if India is not also directly involved in such war, but there are definitely some geopolitical implications, or obviously economic implications are definitely there. So we have to study all the dimensions from every news. Next is what was there in the news in this India Bangladesh ties. So you can see here the 2 points which has been jotted here, that India hopes Bangladesh hostile stance is temporary, that relations will improve soon. So I hope if you are continuous with your preparation, if you're continuous with your current affairs, you know that India and Bangladesh relation are currently in tension. Okay, they used to be very good neighbor, they are good neighbor, no doubt, but currently between these two neighbor there are some tension. Okay, we will be studying about that, why this tension. India concerned about the atrocities against minorities in Bangladesh. So who are the minorities in Bangladesh? We are talking about the Hindus here. Okay, so that is the basic news. So behind it, what was the background, what is the current position, what does India think, that we will be seeing here. So now let's see the relevance. What is the relevance, why we will be studying that? So if you see here, the importance of Bangladesh of India's Act East policy. You know, you are aware about the Act East policy, that first initially it was the Look East policy, but the new government, it has upgraded it, that not only look into the policy, not only to look into the Southeast Asian nations or the East Asian nations, but it is the time to act, where Bangladesh becomes a very crucial country for the development of the relation between Eastern Asia and India. Next, human rights and minorities issue and geopolitical and regional impact we have to look. So let's proceed. Now what is the background? If you see the background, there was a political tension, or political transition in Bangladesh,
in August 2024, what happened? The former prime minister Sheikh Hasina, she was ousted amid widespread protest, leading to the establishment of an interim government. Okay, when she was ousted from her own country, when she was overthrown from her throne as a prime minister, then it was occupied by an interim government which was headed by the Nobel laureate Muhammad Yunus. He is Muhammad Yunus. Muhammad Yunus. Okay, so currently where is Sheikh Hasina? So we know, everyone of us know that she is in exile in India. She is in exile in India, and she has accused of falling to prevent attacks on historical sites. All right, she has also accused Muhammad Yunus that they are attacking the historical site. Also, the current news is also that Muhammad Yunus has also criticized Sheikh Hasina for her very inflammatory statements. Okay, so and on another note, Bangladesh is strengthening ties with China and Pakistan. See, on one side India, and we know that India does not have a very good relation with Pakistan, not as well with China. So when uh, a neighbor with whom we have a very good tie, when the tie is getting broken or there is some kind of rift between two neighbors, and when that particular neighbor is trying to build a good tie with our enemy country, then that becomes a reason of tension. Then the reason of tension was also about the border fencing of India. We know around more than 4,000 kilometer India Bangladesh border, which has been always a focal point of recent disputes. Like what happened, it is related to the border fencing, that India unilaterally, what do we mean by unilaterally? Unilaterally means single handedly, India only decided to fence the India Bangladesh border completely. Okay, and with that, Bangladesh accused that the action of India, it has violations to the 1975 memorandum of understanding, which actually prohibits development within 150 yards of the zero line without mutual consent. Let me repeat, कि when the memorandum which was signed in 1975 MOU between India and Bangladesh, it said that it violated, Bangladesh is accusing India that it violated, that India single-handedly, unilaterally did a development which actually prohibits it. It prohibits कि 150 yards, within an area of 150 yards, no development can take place without mutual consent. All right, and along with that, both the countries' farmers are into continuous escalation of clashes. They are fighting with each other, and which is a threat to the border security. So this is the actual background. Okay, so and the recent developments are what, that India reduced the issuance of medical visas to Bangladeshi citizens. That is the retaliation of the of Indian part to the Bangladesh, according to it, the diplomatic summons. Okay, let's move ahead. And what is the recent concern? Recent concern is that you can see here a picture where Bangladeshi Hindus are protesting against the religious majority, or the protesting against the government who is trying to be a pro-Islamic government, where their rights, the Hindu rights, are continuously under threat. So rising attacks on Hindus in Bangladesh. But Muhammad Yunus said that it is the internal matter. It is the internal matter of Bangladesh, and India must not poke its nose. In that reaction, what our external affairs minister Shankar Jaishankar said, that uh, it will be he raised concerns over Hindu persecution, that India is also concerned about the Hindu persecution in Bangladesh.
Okay, so India is concerned about its minority safety in Bangladesh, which is a regional security issue, not a Bangladesh's matter. All right. So this is the current news from India Bangladesh ties. So what you have to study about it when you continuously get in your newspaper about India Bangladesh this issue, so you have to study here about their ties, the history. From your international relations static part, you have to study about the history, you have to know about the current development I already told you. Along with that, what you have to learn is about the minority issue, along with that the human rights issue. Okay, how this kind of actions violate the human rights. Okay, now let's move ahead. So the next use is Waqf bill. So same way, why we are studying this news is Waqf bill important for our syllabus? Yes, because Waqf bill is actually a statutory body. It has been established by a particular act that we will be talking about today. So this will come under GS2 under statutory, regulatory and various quasi-judicial body. As Waqf board or Waqf board is a statutory board. Waqf bill, Waqf act is passed, it will be amended. That's why it is very very important. What is in the news that the Waqf bill is going for an amendment which actually tabled in 2024. We will be studying about that because in this particular parliament session, in this particular budget session which will be ending in this 4th of April, the bill is being presented. So we will be studying here what is the relevance here, because what is Waqf, it can be asked in examination. Okay, it can be asked in your prelims especially, and along with that means in some way or other it can be asked. And also the most important thing, what are the proposed amendments in the Waqf bill that we will be looking into. Now what is this Waqf bill? The Waqf bill is, it is actually a property. It is actually a property donated by Muslims for specific religious, charitable or private purpose. What it is, when a property is donated by a Muslim for some kind of religious, charitable or private purpose, then that property is termed as Waqf. The property is termed as Waqf. All right, you have to know it because this is something which is very important for your prelims. Which of the following statements are true about Waqf? Ownership of the property is considered to belong to God. It is believed that the property which has been donated, it belongs to the God, and its benefits are directed to the specific purpose. So the property is to be used for some kind of specific religious purpose. All right. Now the concept of let me tell you the concept of Waqf. It existed in India not after independence, but it exists from the early medieval days, from the Delhi Sultanate. Under Sultan Muizuddin Sam Kahor. You have to note it down. Sultan Muizuddin Sam Gahor, which actually he dedicated 2 villages to Multan's Jama Masjid and appointed a person named as Shaykhul Islam as its administrator. From that point of time, the concept of Waqf exists. All right. Also in British Raj, there was also a controversy regarding this Waqf, which related to the Privy Council of the British. It criticized Waqf as perpetuity of the worst kind. What does this mean? Let me tell you ki the British Raj controversy was the Privy Council. Here is some historical fact I want to give you. Privy Council, it criticized the Waqf as perpetuity of the worst kind. Perpetuity of the worst
kind. Okay, what does this mean, perpetuity of the West kind? Perpetuity means your कि something which has no end. So British, they used to say that waqf is something which has no end, but it is of worst kind. कि एक ऐसा कोई चीज़ जो अच्छा नहीं है, एकदम बुरा है, उसका अंत नहीं है, उसको क्रिटिसाइज किया गया बाय द वक़फ़. सो यू कैन सी हियर वक़फ़ वाज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड थ्रू अ रिटन डीड, लीगल इंस्ट्रूमेंट और ओरली. ऐसा नहीं कि वक़फ़ सिर्फ और सिर्फ लिख के ही किया जाएगा, उसके साथ ये ओरली भी किया जाता था. नेक्स्ट इज यूज एंड परमानेंस. A property may be recognized as waqf if it has been used for religious or charitable purpose over an extended period. एक लंबा समय के लिए अगर उसको रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ किया गया है तब उसको वक़फ़ माना जाएगा. और एंड इफ़ अ प्रॉपर्टी इज़ कंसिडर्ड एज वक़फ़ देन इट इज़ परमानेंट एंड इररिवर्सिबल. कि एक बार उसको वक़फ़ मानने के बाद उसको फिर से रिवर्स नहीं किया जाएगा. ऑल राइट. Now let's talk about the Waqf Bill. So the Waqf Bill, it was introduced and passed in 1995 as Waqf Act 1995, which granted the permanent dedication of property to religious or charitable purpose under Muslim law. कि under the Muslim law the Waqf property has been given the permanent status कि वो permanent है. And this Waqf Act in 1995 established the Waqf Board. Waqf Board का काम क्या है? Waqf Board का काम है वक़फ़ का मतलब वो रिलीजियस प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस करना. Okay, now next the current affairs is that Waqf Amendment Bill 2024. It brings actually the two bill. It introduced in 2024. One is Waqf Amendment Bill 2024 and the Musalman Waqf Repeal Bill 2024. आपको ये याद रखना है for your prelims. Now what we have to understand now is the key changes. कि ये जो 2024 को जो ये अमेंडमेंट बिल आया था या फिर अभी जो ये पास नहीं हुआ, अभी फिर से ये टेबल होगा, उसमें क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे. लेट्स वन बाय वन वी विल डिस्कस. द फर्स्ट इज़ वक़फ़ फॉर्मेशन. कि जो वक़फ़ है उसको कैसे फॉर्म किया जाएगा. कि यहाँ पर दो चीज़ बोला गया कि वक़फ़ फॉर्मेशन, वक़फ़ कैन बी फॉर्म्ड बाय नंबर वन है एक फर्स्ट वन इज़ डिक्लेरेशन. कि ये एक डिक्लेरेशन जारी करके एक प्रॉपर्टी को वक़फ़ डिक्लेयर किया जा सकता है. Number two condition is that recognition of long-term use. Recognition of long-term use. कि ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि जो ये वक़फ़ है जिसको हम वक़फ़ कैटेगरी देंगे उसका लॉन्ग टर्म यूज़ होगा. एंड नंबर 3 एंडाउमेंट व्हेन सक्सेशन एंड्स. नंबर 3 it is endowment when succession ends. जब इस प्रॉपर्टी का जो सक्सेशन एंड हो जाएगा उसका कोई लेनेदार नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली वो रिलीजियस पर्पस के लिए चला जाएगा. ठीक है. सो उसमें और एक पॉइंट है, आप लोग सुन लीजिए, याद कर लीजिए कि ओनली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स फॉर एटलीस्ट 5 years कैन डिक्लेयर वक़फ़. कि जो मुस्लिम्स प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स है वही वक़फ़ को डिक्लेयर कर सकते हैं विथ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी बीइंग मैंडेटरी. ठीक है. और जो प्रॉपर्टी है उसका ओनरशिप मैंडेटरी होना है. नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में क्या चेंज आया कि द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज़ आइडेंटिफाइड एज वक़फ़. कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो है उसको एज अ वक़फ़ आइडेंटिफाई करना है, विल रिवर्ट टू स्टेट ओनरशिप. वो स्टेट ओनरशिप में ही रहेगा. और ये जो डिस्प्यूट है या फिर इसका ओनर कौन रहेगा, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का ओनर कौन रहेगा, ये डिटरमाइन करेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. फाइन. दिस इज द सेकंड चेंज. द थर्ड चेंज इज वक़फ़ प्रॉपर्टी डिटर्मिनेशन. द वक़फ़ बोर्ड का जो पावर है वो डिटरमाइन करेगा अबाउट द वक़फ़ प्रॉपर्टी इज बीइंग रिमूव्ड. कि जो वक़फ़ प्रॉपर्टी है उसको कैसे, उस प्रॉपर्टी को कैसे रिमूव किया जाए. द बोर्ड्स पावर टू डिटरमाइन वक़फ़ प्रॉपर्टीज इज रिमूव्ड. कि ये डिटर्मिनेशन कौन करेगा, ये वक़फ़ बोर्ड करेगा. ठीक है. रिमूवल. नेक्स्ट इज़ वक़फ़ सर्वे. कि यहाँ पर फिर से जो कलेक्टर है, जो डीसी है, उनको काम दिया गया है अबाउट
टू कंडक्ट वकफ सर्वे अंडर द स्टेट रेवेन्यू लॉ। तो ये जो वकफ भी आ जाएगा ये भी स्टेट रेवेन्यू लॉ के अंदर आएगा, कि जो कि वकफ को जो एक अलग एक आइडेंटिटी दिया करता था, वो गवर्नमेंट अभी क्या कर रहा है, वो ब्यूरोक्रेटाइज किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, ब्यूरोक्रेटाइजेशन किया जा रहा है कि ये भी स्टेट लॉज के अंदर आएगा। ठीक है, इसीलिए ये बार बार न्यूज़ में आता है, ये इसीलिए वो करंटली थोड़ा बहुत ये कंट्रोवर्शियल है। उसके बाद वक्फ बोर्ड में भी चेंजेस लाया जाएगा। कैसे कि जैसे कि एक स्टेट गवर्नमेंट विल अपॉइंट इट्स रिप्रेजेंटेटिव, कि वक्फ बोर्ड में जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। ओके, विच विल इंक्लूड टू नॉन मुस्लिम्स along with that members from Shia, Sunni and other backward communities of Muslim communities. Alright, ये आपको याद रखना। These are the changes कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर, एक शिया मेंबर, सुन्नी मेंबर और बैकवर्ड मुस्लिम कम्युनिटी से भी मेंबर होंगे। उसके साथ ट्राइब्यूनल कंपोजिशंस में चेंज आएंगे, अपील्स में कुछ चेंजेस आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में कुछ पावर रिटेन करेंगे और सेपरेट एक नया वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा फॉर 2 सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम। एक है बोहरा, याद रखिएगा ये आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, बोहरा और आगा खानी सेक्ट्स, बोहरा और आगा खानी सेक्ट्स। ठीक है, सो दैट्स अबाउट योर वक्फ बिल। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द म्यांमार अर्थक्वेक। तो ये न्यूज़ तो बहुत दिन से आ ही रहा है न्यूज़पेपर में, आप लोगों को पता है म्यांमार में कितना भयंकर अर्थक्वेक हुआ है। वीडियोस, फोटोज़, दीज आर वेरी मच वायरल ओवर द सोशल मीडिया, इंटरनेट। तो ऑब्वियसली अर्थक्वेक तो डायरेक्टली GS1 का एक सिलेबस है ही हमारा, कि जो कि कवर करता है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना सच एज अर्थक्वेक। ठीक है, तो न्यूज़ में क्या था, ये मार्च 28, 2025 को एक 7.7 मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक आया था, स्ट्रक सेंट्रल म्यांमार नियर मैंडले, तो विच रिजल्टेड इनटू सीवियर कैजुअलिटीज़ एंड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, जिनके फ़ोटोज़, वीडियोज़ हम सभी ने देखे हैं ओवर द इंटरनेट। सो इसमें रिलेवेंस क्या है, इसमें हमारे सिलेबस में क्या रिलेवेंस है, यहाँ पर अर्थक्वेक जब बोला जाता है तब हम टेक्टोनिक सेटिंग के बारे में पढ़ते हैं, कि यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया है और द टेक्टोनिक प्लेट्स और फॉल्ट वो है सेगाइंग फॉल्ट। उसके साथ साथ ये जो अर्थक्वेक जो है ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, इसके साथ साथ ये क्रॉस बॉर्डर डिज़ास्टर मैनेजमेंट को भी कवर करेगा। ऑलराइट, सो लेट्स सी। सो सेगाइंग फॉल्ट ये है क्या, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, दैट इज़ द इंडियन प्लेट, दैट इज़ द बर्मा प्लेट and it is the Sunda plate. This is the Indian plate. Let me write it down. It is the Indian plate. It is the Sunda plate. याद रखना ये दो नाम, इंडियन प्लेट और सुंडा प्लेट। और यहाँ पर एक मेजर फॉल्ट है बिटवीन दिस 2 प्लेट्स, इंडियन प्लेट और सुंडा प्लेट, जिसका नाम है द सेगाइंग फॉल्ट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, द सेगाइंग फॉल्ट इज़ अ मेजर फॉल्ट इन म्यांमार, अ मेनली कॉन्टिनेंटल राइट लेटरल ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बिटवीन इंडियन प्लेट एंड सुंडा प्लेट। तो सेगाइंग फॉल्ट के बारे में और क्या लिखा है कि ये जो है सेगाइंग फॉल्ट, इट इज़ एक्चुअली द डाइवर्जेंट बाउंड्री इन द अंडमान सी with the zone of active continental collision along with the Himalayan front। कि अगर हम ऊपर वाले भाग में देखें तो ये जो हिमालयन फ्रंट है, ये हिमालयन फ्रंट और जो हमारा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, द डाइवर्जेंट बाउंड्री ऑफ द अंडमान सी, तो अगर ये अंडमान सी है, दिस इज़ द कोलिजन that has caused this particular earthquake, okay, that resulted into the fault। नाउ और जो प्रीलिम्स में जो आ सकता है कि रिलेटेड कुछ शहरों के नाम आपको मिलेगा, विच बाईपासेस सर्टेन सिटीज़ ऑफ म्यांमार लाइक मैंडले, यामेथिन, पिनमना एंड द कैपिटल नाइपिडाओ, तुंगो और पेगू। सो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली आस्क
we are reading about sagging fault, it's true. So in prelims it can be asked कि which of the following are correct regarding sagging fault, you have to answer it कि तो ये है, या फिर ये सब जो शहर है यूपीएससी में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है कि शहरों के नाम दिया जाता है और पूछा जाता है ये कौन से कंट्री में बिलोंग करते हैं। तो ये आर्बिट्रेली पूछा नहीं जाएगा कि ऐसे भी दे सकते कि द सिटी मैंडले इज़ इन विच कंट्री। तो ये जो सिटी मैंडले सिटी है, यामेथिन पिनमना, ये जस्ट लिव ऑल दिस थिंग्स, ये नहीं भी आ सकते, पर मैंडले न्यूज़ में आया है तो ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ है। सो ऐसे करके आपको एक न्यूज़ से मतलब यू हैव टू गेट इनटू अ स्पेक्ट्रम, और आपको सोचना है कि एक पर्टिकुलर न्यूज़ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड कि आज न्यूज़ में आया है, और आई थिंक यू आर फीलिंग इट अबाउट द हीट वेव, राइट, कि हीट वेव ऑब्वियसली इट इज़ GS1 ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी का भाग है। और न्यूज़पेपर में आज क्या आया है अबाउट, ये असम ट्रिब्यून में आया है, हिंदू में आया है, इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है, असम रिलेटेड है कि ईस्टर्न असम, शायद आप लोग फील कर रहे हो कि ईस्टर्न असम में 2-fold इंक्रीज इन रेन हुआ है, वाइल स्टेट्स वेस्टर्न पार्ट गोज ड्राई, कि असम का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें 2 गुना ज़्यादा बारिश हुआ है रिसेंटली, और जो वेस्टर्न पार्ट है असम का वो अभी भी ड्राई है। दैट इज़ कॉज्ड बाय द हीट वेव। और जो न्यूज़ में बोला गया IMD ने जो बोला है कि अप्रैल जून का जो महीना है इट टू बी हॉटर देन द नॉर्मल। IMD हीट वेव डेज likely to double in some states, not only in Assam but many states in India. So what we will be studying, what is the relevance here? Yes, it is part of geography, disaster management, obviously climate change and public health. See, heat wave is, we are associating it with पब्लिक हेल्थ। ऐसे आपको एसोसिएट करना आना चाहिए कि एक पर्टिकुलर टॉपिक किस किस पेपर में जाएगा। ऑलराइट, पब्लिक हेल्थ इफ़ यू टॉक अबाउट, इसको हम GS2 में भी रख सकते हैं। ऑलराइट, इन योर सोशल जस्टिस, या GS3 में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रख सकते हैं, GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट में आप रख सकते हैं। सो you have to think about it. So we will be studying about what is heat wave or what causes heat waves and its impact. Heat wave क्या है? A heat wave is a prolonged period of excessively high temperature compared to the normal temperature of region. कि एक रीजन में नॉर्मल टेम्परेचर जो है एक लंबे समय के लिए अगर टेम्परेचर हाई रहे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उस पीरियड को कहा जाता है हीट वेव। ऑलराइट, सो this heat wave has some technical definition which you must know. कि IMD defines heat wave differently for plains and differently for hilly region. plains के लिए IMD क्या कहता है? plains के लिए IMD कहता है जब मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री या फिर 40 डिग्री से ज़्यादा जाएगा और वो परसिस्ट करेगा, उस टाइम को कहा जाएगा हीट वेव। एंड सिमिलरली हिली रीजन के लिए ये नंबर बन जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस या फिर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। ऑलराइट, और उसमें डेविएशन है, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल से कितना डेविएट, कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 4.5 डिग्री सेल्सियस टू 6.4 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल, 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा नॉर्मल से अगर हो फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको बोला जाएगा हीट वेव। और अगर 6.4 से ज़्यादा है उसको कहा जाएगा सीवियर हीट वेव। ऑलराइट, सो वी आर एक्सपीरियंसिंग हीट वेव, और शायद ये जून आते आते और ज़्यादा बढ़ेगा अनलेस एंड अनटिल रेनफॉल्स एंटर। मॉनसून जब आएगा तब उसमें हमें रिलीफ मिलेगा। तो कॉजेज़ क्या क्या है? वेरी कॉमन कॉजेज़, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, कि ड्यू टू द इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैसेस which actually trap more heat in the atmosphere. You people know, हम NCERT में पढ़े, स्कूल में जब हम थे, we studied about the greenhouse gases which actually traps more heat, और वो जो अर्थ है उसको धीरे धीरे गर्म करता है। सेकेंड वन इज़ द एल नीनो इफेक्ट। तो एल नीनो इफेक्ट क्या करता है? इट इज़ वार्मर देन यूजुअल सी सरफेस टेम्परेचर इन द पैसिफिक ओशन डिसरप्ट वेदर पैटर्न्स। ठीक है, कि जो एल नीनो इफेक्ट है, जो पैसिफिक ओशन का जो सरफेस टेम्परेचर है उसके वजह से वो यूजुअल से नॉर्मल से वार्मर रहता है, उसके वजह से भी ये हीट वेव देखने के लिए मिलता है। सो आई होप अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा है तो एल नीनो इफेक्ट आपको ज़रूर मालूम है।
ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक में ज़्यादा घुस जाऊँ तो ये करंट अफेयर्स में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्विकली मैं जितना कम समय में आपको समझा सकूँ आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो एल नीनो इफेक्ट हमें क्या मालूम चला कि पैसिफिक ओशियन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो एल नीनो जो है वो उसको सरफेस टेम्परेचर को यूजुअल से ज़्यादा गर्म बनाएगा। नेक्स्ट इज़ अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, कि जैसे कि शहर एक अर्बन एक सिटी में क्या है, सिटी में बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है, गाड़ी है, पोल्यूशन, डस्ट, कंक्रीट, एवरीथिंग विच एक्चुअली मेक दैट पर्टिकुलर सिटी और टाउन हीटेड अप। तो अगर ऐसा है कि एक पर्टिकुलर शहर एक सिटी वो गर्म है पर आसपास वाला कंपैरेटिवली ठंडा है, यही जगह एक गर्म है, तो इस इफ़ेक्ट को बोला जाता है अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट। इसके वजह से भी हम हीट वेव एक्सपीरियंस करते हैं। और कॉमन थिंग्स लाइक डिफॉरेस्टेशन ऑब्वियसली इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग दिस काइंड ऑफ क्राइसिस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ योर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और आज के वीडियो के लिए ये वाला है हमारा लास्ट करंट अफेयर्स। तो ये नाम से पता चलता है इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड एक करंट अफेयर्स है जो विच कम्स अंडर GS3 और लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। 1991 को जो LPG रिफॉर्म हुआ था दैट लेड टू द कमिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के हैं, एक है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब एक फॉरेन इन्वेस्टर डायरेक्टली इकोनॉमी में, डायरेक्टली एक कंपनी में इक्विटी शेयर्स में ओनरशिप में कंट्रीब्यूट करता है, उसको कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या फिर जॉइंट वेंचर, एक बाहर का कंपनी एक MNC इंडिया में आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है जॉइंटली या फिर इंडिपेंडेंटली, उसको भी कहा जाएगा FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है कि जो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगे वो डायरेक्टली इक्विटी में नहीं आएगा, वो इनडायरेक्टली आएगा। जैसे कि हमें पता है अबाउट द स्टॉक मार्केट, वी स्टडीड अबाउट द फिनेंशियल मार्केट, कि जैसे हम डोमेस्टिकली हम सेकेंडरी मार्केट स्टॉक मार्केट में हम अपना पैसा लगाते हैं, राइट। तो सिमिलरली फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में जब इंडियन शेयर्स, इंडियन स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स जब वो रजिस्टर होगा, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स वो इंडियन स्टॉक मार्केट से खरीदेंगे, उसको बोला जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, तो ये हो गया इसका डिस्टिंक्शन। तो न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में जो आए हैं आज, फॉरेन इन्वेस्टर्स पम्प $6 बिलियन इनटू फुल्ली एक्सेसिबल रूट बॉन्ड। तो हम यही चीज़ आज समझेंगे कि क्यों हुआ है ये, कि हमें पिछले कुछ महीनों से और हाँ अराउंड 3-4 मंथ्स वी नो अबाउट कि देयर इज़ हैवी सेलिंग, कि इंडियन स्टॉक मार्केट से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, द फॉरेन इन्वेस्टर्स दे आर कंटिन्यूसली सेलिंग देयर स्टॉक्स, वो अपना पैसा स्टॉक से बेच के लेके जा रहे हैं ड्यू टू सम रीज़न। और उसी जगह हम इंडियन बॉन्ड मार्केट में हमें सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, जो रिसेंटली ₹51,730 करोड़ तक हुआ है। ऑलराइट, सो FPI क्या है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू। FPI क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स होल्डिंग फिनेंशियल एसेट फ्रॉम अ कंट्री आउटसाइड द इन्वेस्टर्स ओन। जैसे कि आपको मिलेगा ADR और GDR। जैसे कि ADR मतलब क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, और GDR का मतलब है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। मतलब क्या, दीज आर सम इन्वेस्टमेंट टूल्स जहां फॉरेन इन्वेस्टर अमेरिका में ADR खरीद के और यूरोप में GDR खरीद के इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड खरीद के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीद के, ये सब वेराइटीज़ ऑफ टूल्स है। ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड एक कंपनी है जो अलग अलग इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करके, जिसको हम SIP बोल सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और उसी फंड से वो इंडिया में या फिर कोई भी कंट्री में, एक ही है सब, डिफरेंट कंपनीज़ में या फिर डिफरेंट फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में वो इन्वेस्ट करेगा, विच लीड्स टू लेसर रिस्क। तो जब फॉरेन इन्वेस्टर उन्हीं सब चीज़ों में पैसा लगाता है, उसको कहा जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया में जो ये होता है, कभी कभी सुनने में आएगा कि इन्वेस्टमेंट लेके चला गया, क्यों, कि जब आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, व्हेन यू विल सी इन्फ्लेशन,
तो ये इन्फ्लेशन क्या करता है? इन्फ्लेशन करता है इट डिक्रीजेज द प्रॉफिटेबिलिटी, इट डिक्रीजेज द प्रॉफिटेबिलिटी। जब बिजनेस इन्फ्लेशन प्रॉफिटेबिलिटी को खाएगा ना, तो जो इन्वेस्टर जो पैसा अर्न करने के लिए लगाया है, ठीक है, तब वो दे विल लूज देयर कॉन्फिडेंस इन द इंडियन मार्केट, इंडियन कंपनीज की। इंडिया में पैसा मैंने लगाया है पर मेरा पैसा तो कम होगा ड्यू टू लेस प्रॉफिटेबिलिटी। प्लस जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, जो जैसे कि रशिया यूक्रेन वार हो, या फिर इंडिया और बांग्लादेश के साथ जो संबंध बिगड़ रहे हैं, इंडिया के साथ चाइना का जो इशू है, जब भी आपको जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिलेगा, तब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो सोचेंगे कि इस कंट्री का जो जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसमें प्रॉब्लम हुआ है, द कंट्री इज़ बिकमिंग जियोपॉलिटिकली अनस्टेबल। थोड़ा सा भी अगर हो तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, वो पैनिक करने लगेंगे और पैनिक सेलिंग होगा। ऐसा नहीं कि हर लोग करते हैं, कुछ लोग पैनिक सेलिंग करेंगे, कुछ लोग वो निकल जाएंगे कि चलो अभी इंडियन मार्केट नीचे जाएगा। तो जब इंडियन मार्केट, जब ये सोच के जब लोग शेयर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बेच देंगे और पैसा जब वो बाहर लेके जाएंगे, इंडिया से जब वो पैसा बाहर लेके जाएंगे, तब क्या होगा, इंडियन स्टॉक मार्केट में सेलिंग ज़्यादा होगा। तो बाकी लोग भी देख के क्या करेंगे, पैनिक सेलिंग करेंगे। वो पैनिक करके भाई शेयर मार्केट तो गिरा, चलो हम भी बेच दे, तो वो भेड़ चाल में चले जाएंगे। तब स्टॉक मार्केट में क्या आता है, करेक्शन आता है, कम होता है। तो बॉन्ड मार्केट में क्या है, जब एक चीज़ आप लोग याद रखना कि जब भी स्टॉक मार्केट जब नीचे जाएगा ना, जब इन्फ्लेशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन जब ज़्यादा होगा, जैसे कि वार हो रहा है आज के डेट में हर एक जगह पर, तो ऑयल प्राइसेस विल इंक्रीज। अगर ऑयल का दाम अगर इंक्रीज हो जाए तो देयर विल बी डेफिनेटली ग्लोबल इन्फ्लेशन, देयर विल बी ग्लोबल प्राइस राइज। तो ग्लोबल प्राइस राइज की वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स है, जो मनी है, इट बिकम्स कॉस्टलियर। इकोनॉमी में शायद आप लोगों ने पढ़ा है, जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज होते हैं। तो इंटरेस्ट रेट मतलब आपका बॉन्ड का रेट हो या फिर लोन का बोरोइंग की इंटरेस्ट रेट हो, वो इंक्रीज होंगे। तब जो इन्वेस्टर्स है वो क्या करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट मतलब इक्विटी इन्वेस्टमेंट को बेच के वो बॉन्ड मार्केट में पैसा ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम बॉन्ड में रिटर्न अच्छा मिलेगा, लोन में रिटर्न अच्छा मिलेगा। इसी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट को बेच के बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाते हैं। इसी वजह से आज हमें ये न्यूज़ देखने को मिल रहा है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड इन द लेटर पार्ट देयर आर सम MCQs। आप लोग इस MCQ के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लेके आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देना। सो यहाँ पर कुछ MCQs मैंने दिया है। इट इज़ द about the India Bangladesh, which of the following is not a bilateral agreement between India and Bangladesh? Please take a screenshot and do share your answer in the comment section. ये वाला it is the question on the Waqf Act of 1995. Please take the screenshot और इसका भी आंसर आप बताइएगा हमें। All right, and the last one about the foreign direct investment, कि जो foreign investment related एक question है, इसको भी आप अटेम्प्ट करना। और प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू फाइंड द करंट अफेयर्स एनालिसिस बाय मी। होप टू सी यू अगेन, टिल देन टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।